Dear students, in this lecture, we will study physical quantities and its types. Secondly, we will study the system international. In the system international, we will study its historical background and the need of system international. तो चलें इसको देखते हैं. चले स्टार्ट लेते हैं. So, what is physical quantities? Quantities मिकदारें. So physical quantities are those quantities in real world which can be measured. कोई भी quantity अगर हम उसकी measurement कर सकते हैं तो वो हमारे पास physical quantities का नाम देंगे हम उसको. तो time, for example, mass, force, etc. all these quantities are physical quantities. कुछ quantities ऐसी हो सकती हैं जिसकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं तो हम उसको हम नाम देंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल लव, हेट, सिंपैथी. तो ऑल दिस क्वांटिटीज़ आर बेसिकली नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्योंकि हम मेजर ही नहीं कर सकते कि अगर हम किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो हाउ मच वी लव द पर्सन. So, due to the fact that we cannot measure all these quantities, so therefore these quantities fall in non-physical quantities. अच्छा, physical quantities are either scalar quantities or vector quantities. On scalar and vector quantities, I have recorded a complete lecture. So, the link is in the description. You can watch that video for scalar and vector quantities. Similarly, physical quantities may be either base quantities or derived quantities. Base quantities are those quantities which are selected by a group of scientists and those quantities acts as a base for other quantities, so they are called as base quantities, and basically they are seven. Later we will explain these quantities also. Derived quantities are basically derived from base quantities. For example, time is a base quantity, mass is a base quantity, length is a base quantity, and meters area is a derived quantity which is derived from the product of length. अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास यूनिट क्या है. तो यूनिट इज़ द स्टैंडर्ड with which we compare physical quantities. स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी अगर हम मेजर करते हैं तो उसको हम किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं एंड दैट स्टैंडर्ड इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ दैट फिज़िकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज़ के मास को मेजर करते हैं तो हम the mass of that physical quantity is compared with kilogram. Now this kilogram is basically the unit of mass. So किसी भी मेजरमेंट में आप जिस क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो उस स्टैंडर्ड को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट. सिमिलरली लेंथ जो है जब भी हम मेजर करते हैं तो उसको हम मीटर के साथ, सेंटीमीटर के साथ, किलोमीटर के साथ कंपेयर करते हैं. सो दैट इज़ बेसिकली मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आर टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर measuring the length of any physical quantity, and this is basically these are the units of length. आगे चलते हैं. What is measurement? So measurement is the process of comparing physical quantities with it
with its standard। फिजिकल क्वांटिटीज़ को उसके स्टैंडर्ड के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को मेजरमेंट का नाम देते हैं, पैमाइश का नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी है, मास को हम जब मेजर करते हैं तो उसको हम चेक करते हैं किलोग्राम से। तो नाउ दिस होल प्रोसेस इज़ बेसिकली टर्म एज मेजरमेंट। सिमिलरली लेंथ को हम देखते हैं, टाइम को हम देखते हैं। तो the process in which we compare certain quantity, physical quantity, to its standard, that process is basically termed as measurement. Now we are going to study System International. In System International, basically a team of members of physicists decided the units of all the physical quantities, whether they are base quantities or derived quantities। अच्छा बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल जो है, अच्छा इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि a physical quantity can completely be represented by magnitude plus unit। अगर वेक्टर है तो उसके लिए हम उसके साथ डायरेक्शन का भी जिक्र करेंगे, अगर स्केलर है तो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यूनिट किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए अगर हम देंगे तो हम कौन सा यूनिट देंगे, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ कि लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल, इनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी दिस द बेस यूनिट विच इज़ फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब। तो हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे कि उसको हम उसको पूरी दुनिया फॉलो करे। सिमिलरली मास को हम ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, इसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें से कौन सा यूनिट उठा लें ताकि वो फॉलो हो सकें अराउंड द ग्लोब। अच्छा तो हम हमारे पास कंप्लीट सेट्स ऑफ यूनिट होने चाहिए कि हम रिप्रेजेंटेशन कर सकें फिज़िकल क्वांटिटीज़ की अराउंड द वर्ल्ड। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़। जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक कंप्लीट सेट हमारे पास होना चाहिए ताकि हम थ्रू आउट द ग्लोब इसको रिप्रेजेंट कर सकें और इन्हीं यूनिट्स को इस्तेमाल करके हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हम मेजर कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हिस्टोरिकली साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट बैठ गए और उन्होंने डिसाइड करना था कि हम किसी स्पेसिफिक फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करें। सबसे पहले जो फिजिसिस्ट ने इस चीज़ पे काम किया तो वो था इन 1862 ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस, BAAS। इन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया ऑफ फिजिसिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुख्तलिफ़ कंट्रीज से डिफरेंट फिजिसिस्ट्स इसमें शरीक हुए। इनमें से वेल नोन जो साइंटिस्ट जिन्हें हम जानते हैं, CF गास इस कॉन्फ्रेंस में शामिल था और वेबर ने भी इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और भी काफ़ी वेल नोन फिजिसिस्ट थे जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। यहाँ पे बताता चलूँ कि इस specifically this conference was arranged to study the electrical units। अच्छा, यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को डिस्कस किया गया और इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को इन सिलेक्शन उसकी हो गई। बाकी जितने भी यूनिट्स हैं they were not under the discussion in this specific conference, in this commission। अच्छा, इसके बाद
1901 में इटालियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर जियोवानी जॉर्जी ने क्या किया कि इन्होंने प्रोपोज्ड कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने इसी सिस्टम के साथ जो 1862 में जो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हमारे पास आ चुके थे उसके साथ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, these three units are added with the already known electrical units in this commission। इस कमीशन में जो इलेक्ट्रिकल यूनिट सेलेक्ट हुए थे इसके साथ ये 3 यूनिट्स ऐड करके इन्होंने इस पे काम किया और एक सिस्टम हमें दे दिया जिसे हम CGS सिस्टम का नाम देते हैं। बाद में यही सिस्टम CGS सिस्टम एवॉल्व करके जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो बन जाता है। अच्छा, so this CGS system later on developed or have given birth to the current system international। This is basically evolved। अच्छा, अब इसके साथ 1960 में 11 CGPM जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स जिसको हेल्ड किया था बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने एग्रीड अपॉन 6 यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे बेस जो हमारे पास यूनिट्स हैं अभी जो हम पढ़ते हैं तो वो टोटल 7 है, लेकिन 1960 में इस कॉन्फ्रेंस में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में टोटल 6 यूनिट्स जो है ना बेस यूनिट्स उसको सेलेक्ट किया जाता है। एंड इन द सेम कॉन्फ्रेंस दे ऑफिशियली नेम द सिस्टम एज सिस्टम इंटरनेशनल। इसी कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल नेमिंग भी हो जाती है इस सिस्टम की। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से यूनिट्स जो है ना उसको डिफाइन किया गया और उसको एज ए बेस सेलेक्ट किया गया। उसमें सबसे पहले मीटर which is the unit of length, kilogram unit of mass, second unit of time, ampere unit of current, Kelvin unit of temperature and candela यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। इन 6 यूनिट्स को फाइनलाइज किया गया और इनको डिफाइन किया गया एज ए बेस यूनिट। और इसी कॉन्फ्रेंस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडिला इसकी मैथमेटिकल वैल्यू और इसका फिज़िकल स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया गया कि हमारे पास मीटर इतना लेंथ होगा, किलोग्राम जो है ना इतना वेट हमारे पास किलोग्राम आएगा। इस पे मैं अलग-अलग एक वीडियोस बनाऊंगा मीटर पे, किलोग्राम पे, सेकंड पे कि इस बेसिकली ये कहाँ से इन्होंने इन चीज़ों को सेलेक्ट किया और इसकी फ़िज़िकल वैल्यू कितनी इन्होंने सेलेक्ट की। तो उस पे पूरा इंशाल्लाह एक लेक्चर दूंगा, उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद लेटर ऑन इन द 14th CGPM conference held in 1971 they added mole as the 7th base unit and explained its
physical value also. So we have टोटल सेवन बेस यूनिट्स. अच्छा, तो ये जो हमारे पास 7 यूनिट्स आ गए हैं, इसको इन्होंने सेलेक्ट किया और इसको सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया एज बेस यूनिट्स. अच्छा, अब ये बेस यूनिट्स जो है दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल कांस्टेंट्स ऑफ नेचर. अच्छा, अब इसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ. इन चीज़ों को मैंने बाद में अलहदा वीडियोस में एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल के साथ इसको समझाता हूँ कि फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर के साथ कहाँ से इनको लेके आए ये चीज़ें. अच्छा, तो हमें पता है कि लेंथ जो है, उसका यूनिट मीटर है. SI यूनिट इज़ मीटर. अच्छा, अब this meter is derived with this meter is derived from the speed of light, which is basically a fundamental constant of nature, and we know that the speed of light is 3 into approximately equal to 10 raised to the power 8 meter per second. Similarly, mass, this is basically derived from are linked with Planck's constant, and current is basically whose unit is ampere, is basically derived from the charge on an electron. तो इन चीज़ों को मैंने बाद में एक्सप्लेन करना है, तो इंशाल्लाह वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर फॉर all these explanation of the different units which was basically selected in the system international. अच्छा, तो अब ऐसा यूनिट्स, वाई वी नीड दिस यूनिट्स, इनको क्यों ज़रूरत पेश आई कि इन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल में इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया. तो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, इनको हम देखते हैं. तो फर्स्ट जो है ना, यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइजेशन. So this standard is basically now accepted worldwide. Acceptance. अच्छा, इंजीनियर, साइंटिस्ट और जो प्रोफेशनल है वो इन्हीं यूनिट्स को इस्तेमाल करके जो है ना, इस्तेमाल करके जो कैलकुलेशंस करेंगे. तो दिस इज़ नाउ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एंड दिस बिकम एज अ स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड. सेकेंडली, कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी. अच्छा, they are basically interconnected. All the units are interconnected. हम एक यूनिट को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसको दूसरा यूनिट डिफ़ाइन करते हैं. अब अगर देखा जाए तो ये जितने भी यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं, दे आर फंडामेंटल कांस्टेंट्स ऑफ नेचर हैं. ठीक है, वहाँ से इन्होंने डिफ़ाइन किया है. तो बेसिकली दे आर इंटरकनेक्टेड. इसको अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो हमारे पास जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स आ रहे हैं ना, तो वो जो है बेसिकली दे आर फ्रॉम बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट्स एंड दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. सेकेंडली, कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं आपस में. किसी एक यूनिट को हम किसी दूसरे यूनिट में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. बेसिकली दे आर मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेंट यूनिट्स बिकॉज दे आर derived from fundamental constants of nature. ये ऑलरेडी ऊपर हो चुका है कि हम किसी यूनिट को हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि अगर स्पीड ऑफ लाइट ने इतना फासला इतने टाइम में कवर किया, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर. तो
मास प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ, प्लैंक्स कांस्टेंट इज़ अगेन फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर। करंट को हम चार्ज एन इलेक्ट्रॉन कितना है, दिस इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट चार्ज which basically a particle uh, uh, have एक एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे जो हमारे पास चार्ज आ रहा है वो बेसिकली इट इज़ द फंडामेंटल चार्ज, सबसे छोटा चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट करता है। तो उसको यूज़ करके हमारे पास उस क्वांटिटी को यूज़ करके हम करंट को डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली उसकी फिर प्रिसीजन और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होगी, और इसी बेस पे हम जो है ना एक्सप्लेन कर लेते हैं इन तमाम चीज़ों को। एंड दे आर फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर, सो दे आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अच्छा, थर्डली इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस। अच्छा, इन यूनिट्स को हम मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में इस्तेमाल करेंगे तो उनके यूनिट्स भी तमाम जितने भी डिसिप्लिन्स है उसमें सेम आएंगे, चाहे हम बियोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंटल साइंस में। इन यूनिट्स के थ्रू हम मेजरमेंट करेंगे, और उन मेजरमेंट के लिए हम कौन से यूनिट इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्टली द सेम यूनिट्स फॉर ऑल दी डिसिप्लिन्स। सो दिस इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम इंटरनेशनल। हम ये नहीं कर सकते कि हम फिज़िक्स में हम मीटर इस्तेमाल करें लेंथ के लिए, और हम जो है केमिस्ट्री में हम लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर इस्तेमाल करें या कोई दूसरा इस्तेमाल करें, दूसरा यूनिट इस्तेमाल करें। सो बेसिकली ऑल दीज units, the base units and derived units, which is defined by the system international, is used throughout all the disciplines, and this is basically the interdisciplinary application of system international. अच्छा, फिफ्थ जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स। अच्छा, ग्लोबल ट्रेड हम करेंगे दुनिया के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में जो ट्रेड करते हैं, तो उसमें वहाँ पे हमने क्या करना है कि ये नहीं कर सकते कि आप किसी मुल्क से किसी स्पेसिफिक यूनिट में आप चीज़ें मंगवाते हैं जो कि यहाँ उस दूसरे मुल्क में वो किसी दूसरे यूनिट में होंगी। तो दिस विल क्रिएट अ कंप्लीट chaos if different units are used across different countries. Similarly, करेंसी जो है, ट्रांजैक्शंस ऑफ करेंसी, उसमें भी मसला आ जाएगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपली हम अगर किलोग्राम को ले लें, आप किसी कंट्री से आप ग्राम में चीज़ें खरीदते हैं या मिलीग्राम में ख़रीदते, और यहाँ पे आपका जो यूनिट है वो किलोग्राम है, तो कन्वर्जन में इतना टाइम लगेगा कि वो फिजिबल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इनके एप्लीकेशन ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, सिक्स एंड द लास्ट एप्लीकेशन need of system international is environmental and safety measures. So environmental regulations, safety standards and quality control depends on accurate measurement. क्या? Environmental regulations, safety standards and quality control depends on accurate measurement. So जो हमारे पास environmental regulations हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं एंड क्वालिटी कंट्रोल्स जो है, इसके लिए हमारे पास प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। एंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट दीज यूनिट्स आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो ऑल दिस
regulations and controls is basically required, and System International ensures us uh, all of this. So उम्मीद है this lecture will help you to know System International and the need of System International of units. Thank you.